Hello everyone, today we are going to learn the next chapter of grade 10 science, and the name of the chapter is Our Environment, chapter number 15. So here is a lesson outline that you have to learn in this video. So in this video we have to learn about what is biotic component and what is abiotic component. So what are the components of ecosystem? So if we are talking about ecosystem, then what is ecosystem? So ecosystem is nothing else but a surrounding of you, कि आपके आसपास में जो भी चीज़ है, all the living bodies, non-living bodies and the surrounding atmosphere is known as ecosystem. Now there are two types of component in ecosystem, that is biotic component and abiotic components. Biotic component means living things which is present on the earth, that is biotic component, and abiotic components means non-living things which is present on earth, they are abiotic components. Then just a summary flow chart, so easy to remember you. So if we are talking about ecosystem, then ecosystem is divided in two parts, biotic ecosystem and abiotic ecosystem, or else you can say biotic component and abiotic components. Now biotic components, that means living bodies. Living bodies are divided in another two parts, that is autotropics and heterotropics. Then now autotroph, that means plant, or else you can say a type of organism which can make their own food, so they are autotrophs. So autotrophs have a two type, that is photosynthetic and chemosynthetic, मतलब ऐसे organisms जो photosynthesis करके food prepare करते हैं, या तो फिर chemosynthesis कि भाई ऐसे organisms जिनके अंदर chemical reactions होके वो लोग food synthesis करते हैं. So there are two types of autotrophs. Now heterotrophs, they are consumers and decomposers. Then consumer, that means a type of organism which consumes ready-made food from host, they are consumers. And consumers have three types, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Now what is that? You know that. Then decomposers. Decomposers are the type of organism which can rely on a dead and decaying matter. They are decomposers. For example, scavengers, detrivorous and saprotrophs. These are the decomposers. Done. So biotic components के two part, autotrophs and heterotrophs, clear हो गए. Now abiotic components. So as we know that abiotic, that means non-living things. So which are the non-living things surrounding you? That is soil, sunlight, water, air, temperature and inorganic न्यूट्रिएंट, कि भाई आपके आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट्स. दैट मीन्स सन, सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, दिस ऑल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. एबायोटिक के अलावा बायोटिक नहीं जी सकते और बायोटिक के बिना एबायोटिक नहीं जी सकते. डन. Then let we learn in detail. First we are starting with biotic components. So they are composed of, as we know, autotrophs and heterotrophs. So now what is autotrophs? So produce their own food by the process of photosynthesis or chemosynthesis, कि भी ऐसे organisms जो अपना food खुद से बनाते हैं, या तो photosynthesis की process के through या तो फिर chemosynthesis की process के through. And the examples are plant and phytoplanktons. These are the organisms which can do photosynthesis and make their own food. Then heterotrophs feed and autotrophs for food cannot produce their own food. Now heterotrophs, that means a type of organism which are dependent on autotrophs, कि भी ऐसे organisms कि जो autotroph के ऊपर dependent होंगे, अपना food खुद नहीं बना पाएंगे. And the examples are animals. देन अभी एनिमल्स, दैट मीन्स कि वो जो रोड पे दिखते या तो फिर जू में होते, वो एनिमल्स नहीं, वो तो एनिमल्स है ही, वो तो इस कैटेगरी में आते ही है, बट साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ह्यूमन्स आर ऑल्सो इन अ कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. डन. सो एनिमल्स जहाँ पे बात है वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी आ गए और नॉर्मल एनिमल्स भी आ गए. सो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ओके, यहाँ पे एनिमल्स मतलब सब आ गए, एनिमल वाले एनिमल भी और ह्यूमंस भी, ऑल द लिविंग थिंग्स. देन नाउ ऑटोट्रॉप्स. सो ऑटोट्रॉप्स आर थिंग्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ
photosynthesis or chemosynthesis and can be classified as photosynthetic and chemosynthetic. Then कि autotrophs क्या होते हैं पता ही है हमें. अब photosynthesis and chemosynthesis की बात कर ले तो photosynthesis use sunlight to make their food. Then कि photosynthesis के अंदर क्या होगा, as we know that sunlight का use होगा. उनकी 4 टोटल मेन नीड्स होती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. These are the need for photosynthesis, and with the help of these 4 things they can make their food in a form of glucose, and that glucose will be stored in a form of starch. Then the next one, that is chemosynthesis. Now how they work, so use inorganic substance to make food. कि भाई जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उनका यूज़ करके वो फूड बनाएंगे. इनऑर्गेनिक मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं है, जो इनऑर्गेनिक है, केमिकल्स के थ्रू जो अपना फूड बनाएंगे, दे आर केमोसिंथेटिक. नाउ heterotrophs feed on autotrophs for food, cannot produce their own food. So what are heterotrophs? Heterotrophs are a type of organism which cannot make their own food and they have to depend on autotroph for their food requirements. So they are heterotrophs. Now they can be consumers also and they can be decomposers also, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. या तो वो कंज्यूमर्स होंगे या तो फिर वो डिकम्पोजर्स होंगे. देन नाउ हमने पहले ही बोला, या तो कंज्यूमर होंगे या तो डिकम्पोजर्स होंगे. तो कंज्यूमर के अंदर कौन कौन से आएंगे और डिकम्पोजर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कंज्यूमर्स. सो दे फीड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और अदर ऑर्गेनिज्म, की वो प्रोड्यूसर्स या तो फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. प्रोड्यूसर्स दैट मीन्स यस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. नाउ ऑल एनिमल्स एंड फंजाइज आर हेटेरोट्रॉफ. कि अगर आप एनिमल्स की बात कर लो तो सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, कि सारे एनिमल्स एंड फंजाइज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. अब हेटेरोट्रॉफ्स को भी टोटल 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है. ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है, 3rd 4th स्टैंडर्ड से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में. दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस. देन सो नाउ व्हाट इज हर्बीवोरस? गुड, अ टाइप ऑफ एनिमल्स और टाइप ऑफ थिंग्स विच ओनली ईट प्लांट. then carnivorous मतलब eat only animals, and omnivorous that means they can eat both plant and animals. getting my point? अब herbivorous मतलब कि जो सिर्फ प्लांट खाते हैं. then carnivorous means एनिमल्स खाते हैं. फिर एनिमल्स के अंदर वो सब आ गया, हर्बीवोर्स को भी खाते हो और कार्निवोर्स को भी खाते हो. अब सिर्फ ये समझो कि प्लांट क्या हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, और प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस खाते हैं, तो वो हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स. कार्निवोरस हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ओमनिवोरस हो गए आपके टर्सरी कंज्यूमर्स. ब्रैकेट्स को अभी दिमाग में मत लेना, ठीक है, ब्रैकेट्स अलग चीज़ है. सो ब्रैकेट्स को देख के कंफ्यूज मत होना. आप इतना याद रखो, हर्बीवोरस दैट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस मीन्स secondary consumer, and omnivorous that means tertiary consumers. Done. Now we are talking about decomposers. So what are decomposers? So they feed by eating dead organisms, की ऐसी चीज़ें जो dead and decaying matters पे dependent होगी. Now speed up decomposition and return the nutrient to the soil. कि ये क्या करेंगे कि भाई कोई भी चीज़ है dead and decaying material that can be we dig that in a soil. So now what they work. So a type of organism like bacteria and fungi and algae, what they work, they can on a inside of soil. अब वो क्या करेंगे कि आपने जो भी dead material अंदर dig किया है, अब उसको वो डिकम्पोज कर देंगे. भाई उनको सिंपल कॉम्प्लेक्स में से सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देंगे और उनको डीके करके वो अपना फूड लेंगे, और उसके साथ साथ ही उनका फूड जितना उनको मिल जाएगा उतना वो कंज्यूम कर लेंगे. बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर देंगे, वो सॉइल के अंदर छोड़ देंगे. तो इस तरीके से सॉइल के अंदर ह्यूमस की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी. और दूसरा बेनिफिट क्या है कि वो जो एनिमल की डेड बॉडी थी वो डिकम्पोज हो गई. Then they can be classified in a 3 type. They are scavengers, detrivorous and saprotrophs. Now what is scavengers? So primary source of food are the dead bodies of animals. कि भाई scavenger मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो
एज अ प्राइमरी सोर्स अपने फूड के रूप में क्या यूज़ करती है, डेड बॉडीज़, कि जो मरी हुई चीज़ है सीधा उनको खाते हैं। मरी हुई चीज़ों को खाने वाले एनिमल्स दे आर स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल्स आर वल्चर्स एंड हाइनास, कि वल्चर और हाइना ऐसे एनिमल्स है कि जो उनको जो भी मरी हुई चीज़ें दिखेगी ना उसको वो सीधा खा लेंगे। देन डेट्रीवोरस यूज़ ईट डिकेइंग बॉडीज़। अब डेट्रीवोरस मतलब क्या होगा कि वो जो सड़ी हुई चीज़ें होगी, मरी हुई नहीं, मरने के बाद जो चीज़ें सड़ गई है, सड़ी हुई चीज़ें जो खाएंगे दे आर डेट्रीवोरस। फॉर द एग्जाम्पल इज बेटल्स, एंट एंड अर्थवॉर्म, कि हम मोस्टली देखते हैं एंड्स है, बेटल्स है। देन बेटल्स मतलब वो भंवरे होते हैं ना, दे आर बेटल्स, बेटल्स है। देन एंड्स है, अर्थवॉर्म्स है, कि ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें होते हैं उनको खा जाते हैं, सड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा तोड़ के उनमें से न्यूट्रिएंट लेते हैं। देन सो दे आर डेट्रीवोरस। एंड देन सेप्रोटॉप्स, सेप्रोटॉप्स मीन्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग बॉडी। अब सेप्रोटॉप्स क्या हुआ कि जो ऑलरेडी सड़ी हुई चीज़ें होगी जिनको डेट्रीवोरस ने खा लिया है, उनके बाद जो बचा है उनमें से भी न्यूट्रिएंट लेंगे, दे आर सेप्रोटॉप्स। डन। एंड द एग्जाम्पल्स आर फंजाइज एंड मशरूम्स, कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ी हुई चीज़ें जिनको ऑलरेडी डेट्रीवोरस ने खा लिया है, उनके बाद जो चीज़ें बची है उनमें से क्या कर लेंगे, न्यूट्रिएंट जितना भी बचा कुचा है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। डन। सो एग्जाम्पल्स आर फंजाइज एंड मशरूम्स। देन ये तो सारा आपने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट। नाउ विल टॉक अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट, दैट व्हाट इज abiotic components. So as I already told you that non-living factors that living things need to survive, कि भाई ऐसे non-living factors जो अर्थ के ऊपर present है they are abiotic components. and the main thing कि भाई बायोटिक जितनी भी चीज़ें है, बायोटिक चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए एबायोटिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे प्लांट बायोटिक हुआ, बट प्लांट को फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितनी भी नीड्स है वो सारी एबायोटिक है। सनलाइट, देन वाटर, एयर, ये सारी एबायोटिक चीज़ें हैं। तो अगर एबायोटिक चीज़ें नहीं हुई तो बायोटिक चीज़ें नहीं रह पाएगी। डन। तो ये दोनों वाइसा वर्सा है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। डन। नाउ द एग्जाम्पल्स आर सॉइल, सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के फॉर्म में आपको बताया है, दैट इज सनलाइट, विंड, रेन, वाटर, सॉइल, दिस ऑल आर द अबायोटिक कंपोनेंट। अब जिनकी बायोटिक चीज़ों को ज़रूरत है। डन। सो समझ में आ गया व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट एंड हाउ दे वर्क एंड हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर। डन गाइज, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।